500 international awards, more than 500 international awards, और आज भी मैं रिसीव नहीं करता हूँ अवार्ड्स, बट कोरियर में घर पे आते so it's a very honored to keep getting these awards, though sometimes I feel I don't deserve it, you know, but I'm sure you do. अभी हमारी नेक्स्ट पिक्चर आ रही है जिसका नाम है अमीना. It's a woman-centric movie. I want everyone to support the movie. The reason is it's an underdog at this stage. Underdog. Why underdog? Because हम ईद पे आ रहे हैं और ईद पे हमें दो बड़ी बड़ी पिक्चरें हैं सामने. बहुत अच्छी पिक्चरें हैं, बड़े लोगों की पिक्चर है. एक है बड़े मियाँ छोटी मियाँ और दूसरी है मैदान. छोटे मियाँ बड़े मियाँ में ये अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ. Then we have Maidan, we have Ajay Devgan. So we have made content, powerful content, and it's been written by Aftab Hasnain, who is a very famous Urdu writer, a respectable Urdu writer, along with Krishna Kumar Pawar. I'm the producer director of the movie, and we have the music. The background score has been given by Ismail Darbar. The songs by Javed Ali. Then you have Raza Murad has given voiceover. It's a very interesting movie. We have Anant Mahadevan acting in the movie, along with Rekha Rana, who has gone to Oscars in the last movie, and she has also got 47 international awards for the last movie called Tara: The Journey of Love and Passion, which was produced and directed by me. It's very interesting. The women have loved my movie, Tara: The Journey of Love and Passion. Now this is a very interesting movie. Why interesting? Because एक ही पिक्चर आई है हॉलीवुड में जिसकी नरेशन में आप पिक्चर देखोगे तो प्ले भी आता है, नॉन प्ले भी आता है. प्ले का मतलब है जो एक्टर है बीवी से लड़ रहा है, फिर देखो तो अपना एक्टिंग करने जा रहा है थिएटर में, बिल्कुल ऑडियंस बैठी हुई है, बाहर निकल के सिगरेट पीता है, दरवाजा बंद हो जाता है, फिर भाग के दूसरी जगह से थिएटर में एंटर करता है. So when the movie was being made, people told him you're an idiot, ये पिक्चर चलेगी नहीं. But the movie ran beautifully and also got Oscars. So now in Bollywood, there's no one who has dared to make this movie. I'm the first person who is experimenting on it, and it's a woman-centric movie. I want your support. So Keshav has been very kind with me. He's always promoting me. So people like him, thank you very much. And the woman over here, I really want you to support it. Sure, sir. कुमार साहब, आप महिला प्रधान फिल्म बनाते हैं, पहले तारा बनाई और अभी अमीना, और क्या वजह है इसकी कि महिला प्रधान फिल्में बनाते हैं? फिर स्वरात्मिका जी भी एक प्रश्न कर देंगे आपसे, क्योंकि ये भी चक दे इंडिया. शायद हम लोग जो मैन है अपने माँ को बहुत प्यार करते हैं. So when you get 2-3 stories, you see something good for a woman. And when I was making Tara, everyone said you're wasting your time, you're wasting your energy, you're wasting my money. I said, I'm just passionate about the story, so let me make it. In the same way, now Ameena, when it was being made, I have purchased the rights of a play from Aftab Hasnain. यहाँ अमीना बिकती है is a play which is very popular worldwide. So now, if I just put a play in a movie, no one is going to come in. So in a movie of 1 hour 45 minutes, you have 25 minutes of a play, actual play, but it comes 10 times. That means 2-2 मिनट 2.5 मिनट का प्ले बीच में आते रहता है. जब लड़की सोचती है अपने प्ले के दिन, तो उसको याद आता क्या है. 30 years before, it's a true story based on Ameena, who came in a very difficult circumstances. She was sold by her parents, she was raped, and she had to commit suicide. Okay? Then a play was made with a girl of today. आज की मीना उस प्ले में अमीना का काम करती है. She comes in a difficult situation. वो पृथ्वी थिएटर से बाहर निकलती है, वो किडनैप हो जाती है, उसको रेप करते हैं and उसको मरने के लिए फेंक देते हैं बीच पे. She says she knows Ameena so well because she has acted in the play.
उसकी हर थॉट उसमें है. So when she says, I am not Amina, I am Meena of today, her reactions are different, her consequences are different. तो दो भाग जाते हैं. फ्रांस में एक भागता है, फ्रांस में उधर जाके कांस फिल्म फेस्टिवल में मारती है. दूसरा भाग जाता है अफ्रीका. अफ्रीका में ढूंढ के उसको मारती है. When she comes back, the Interpol is notified, she is arrested, there's a court scene, and she gets what happens after that. That is सबको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ नहीं बताया आप जाएगा. थोड़ा समझाइएगा. सो सर, जैसे आपने ये कहानी का ये जो बताई है, तो यानी कि आज की जो यानी कि जो हम महिला हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उससे जूझ भी सकते हैं, उसका समाधान भी ले सकते हैं, और हमें पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं है. You're so right on it. I am saying that today's woman, जी if you compare from 30 years before, जी 30 years before she was helpless, जी but today a woman can decide and do what she wants. जी जी. बताइए आप. सवाल लेना है बस एक बहुत ही प्यारा से एक मैसेज सर की फिल्म का जो स्टेटमेंट अभी आपसे सुना कि भाई एक लड़की से मिलके लड़की से निकल के हैं, उसी के ऊपर चल फिर कर कहते हैं कि महिला खराब है. ये फैक्ट है. आपने उसी को एक प्ले के दौर को उठा करके कैरेक्टर को बना करके वो ये फिल्म हमें बताने वाली है. और हम उसे देख कर के सारे कुछ अगर सवाल बचे तब हम आपसे पूछने वाले हैं. मुझे लगता नहीं कि इसको देखने के बाद कोई सवाल आपके कट करे नहीं, यार. और महिलाओं को जागरूक करने के लिए है. This is so interesting. This movie, as I told you, it's play non-play, play non-play. पूरी पिक्चर में आपको दोनों के बीच में इसके जो डायलॉग्स है, इतने पावरफुल डायलॉग्स है. रिटर्न बाय आफ्ताब हसनैन. बंद करो ये बाजार, पोस्ट का बाजार. अगर अमीना देखकर लड़कियां मीना जैसी बन गई और सच में मार काट करने लगी तो It is not. It does not. You are not going to interpret that. It is. This is the extreme case. What I am trying to tell you, the girls are brave today. Are going to protect themselves. They are capable of protecting themselves. When I say extreme, मैं चार्ज में चला जाऊँगा तो फिर मैं चार्ज में चला जाऊँगा. So it is like I'm showing you something extreme, fictitious, and trying to put in a story in a very entertaining way, so that people come in and take the message. The messages are not one. There are 40, 50 messages. Every scene when you see over there is a message. उसमें एक छोटा सीन बताओ, वो प्ले का सीन है, वो सब सोए हुए हैं, अपने बच्चे को बेच रहे हैं. उनको 7 बच्चे हैं, तो सबसे बड़ी लड़की 14 साल की है, उसको बेच रहे हैं. तो सब सोए हुए हैं, तो एक व्हाइट कलर का आदमी उठता है, पहले बाप के पास जाके उठाता है, उठ. बोलता है कौन है तू? बोलता है मैं तेरा जमीन. एंड फिर सिंबॉलिक है. मैं बोलता है तू जा, मेरा जमीर मर चुका है. तो वो उसके माँ को जाके उठाता है. माँ को बोलता है तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरी बेटी अरब के पास जा रही है, बेच रही है उसको. अच्छी. So there's a learning from every scene in a movie. So I'm not just telling you go into the extreme and use your brain. Simply, it's a beautiful movie. I am fighting with a very big guys, very big people in the industry. I will tell you, I was sitting yesterday with PVR, Cinemax, not Cinemax, PVR, and all these big theatre people. तुम क्यों आ रहा है? तुमको थिएटर मिलेंगे ही नहीं. चैलेंज कुछ बड़ा चैलेंज है, 2 बड़ी फिल्में हैं. You will understand it. जी. And then PVR tells me, पिक्चर तो हम ही रिलीज कर रहे हैं, बड़े में या छोटे में, तो हम तुमको क्यों देंगे? मैं बोला देना ही पड़ेगा, because जब 2 पिक्चरें आती है और एक पिक्चर नहीं चलती है, तो वही तो दूसरी पिक्चर भागती है. तुम्हारा थिएटर को बढ़ने के लिए हमारी भी तो जरूरत है. जैसे हमें आपकी आपको So आपको जब आपने सेंसर में इसको जमा किया तो कहीं आपत्ति भी की उन लोगों ने या उनके किया? सेंसर ने आपत्ति नहीं की, बिकॉज मैंने जब खून होता है तो वो खून दिखाया नहीं. तो एज लॉन्ग एज वो लाल कलर का खून उड़ता नहीं है, किसी की शक्ल पे नहीं. सो इन माय लाइफ आई बिलीव डोंट ब्रेक द रूल, यू ट्विस्ट द रूल. बिल्कुल.
शो नो टेल। Yeah. तो आपने एक सिंबॉलिक करेक्टर को बता दिया है और ऑडियंस को पता चल जाए, और आजकल की ऑडियंस बहुत बड़ी स्मार्ट smart है, है। इंटेलिजेंट है, और वो बहुत कुछ देख के उनको समझ में आ जाता है कि इसका तात्पर्य ये होगा इस सीन का, तो उसका जो मन है वो समझ जाएगी। Right. बिल्कुल। Any questions, please? I'll be happy to tell you more things about this movie. संजय जी क्या अच्छा, आफ्टर अमीना कंटिन्यूसली आप women oriented, subjective, content based, message oriented films। ये पिक्चर से पैसा बना तो आई कंटिन्यू लास्ट पिक्चर से बहुत पैसा बना, अब भी पैसा बन रहा है। माय मूवी इज ऑन 54 OTT प्लेटफॉर्म्स। आई एम मेकिंग मोर मनी देन बिग मूवीज। मैं बड़ी बड़ी पिक्चरें देखता हूँ, कहाँ पे और कितने व्यूज है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। एक प्लेटफॉर्म जिसने मेरी चोरी की थी पिक्चर, मैंने उसके कोई केस नहीं किया, मैं बोला चलने दो, आई वांट द कंटेंट टू गो वर्ल्ड वाइड। उसको 13.75 करोड़ व्यूज हैं। क्या बात नो है। प्रॉब्लम, मैंने आज तक उसको क्लेम नहीं किया। ही इज डन अ गुड जॉब, बट दिस मूवी इज because I'm still earning. My movie, you will be surprised, is on iTunes, Apple TV. Apple TV और iTunes is higher than Netflix. बिल्कुल, बिल्कुल। So I am running, and वहाँ पे एक बार देखोगे तो $12.5 लगते हैं, और मैं हैरान होता हूँ मेरी पिक्चर लोग लेके जा रहे हैं और टप 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 पैसा आते जाते हैं। It's amazing. I will explain you. Common people today over here, आप देखोगे यूपी बिहार से एक आदमी आता है गठड़ी लेके, एक पिक्चर बनाई जिसका किसी ने भी नहीं सुना, बाद में आपको पता चलता है उसने अमिताभ बच्चन के बाजू बंगलो खरीदा। मैं बता रहा हूँ, इट इज पॉसिबल। व्हाई इट इज पॉसिबल, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू टुडे। ये चीज बोलनी नहीं चाहिए ऐसा, बट मैं बता रहा हूँ। मैं आज एक बॉल पेन लेके जाता हूँ, इनको बेचा, इसने मेरे को 10 रुपए दिए। मैं 1 साल के बाद इसको नहीं बोल सकता, अरे भाई तूने बॉल पेन खरीदी थी 10 रुपया दे, बोलेगा पागल है क्या। मूवी मैंने इनको बेची, इनको डाल दिया कि 1 साल के लिए दे रहा हूँ। उसने 1 साल के बाद चलाई, उसको लीगल नोटिस भेजूंगा, उसको जेल में डालूंगा। इस तरह मैंने एक ही बॉल पेन, ये पिक्चर की, इसको बेची। इससे पैसा आदमी बॉल पे बैठे हैं सबको। वो डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम्स बढ़ गए हैं। अभी मेरे पास आदमी आता है, सर मेरे को नॉर्थ अफ्रीका के लिए चाहिए, और पूछता भी नहीं नॉर्थ अफ्रीका में कौन सी कंट्री चाहिए, भाई दे पैसा ले ले लेके जा। सिर्फ उसमें टाइम डाल देता हूँ कि 1 साल 2 साल। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब है मैंने नाइजीरिया में आपको भी दिया तो सबको नाइजीरिया दे सकता हूँ। तो आई विल टेल यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ ऑलरेडी आई हैव प्रपोजल्स, आई गॉट अ प्रपोजल बिफोर आल्सो फॉर सब्सिडीज। मैंने कभी जिंदगी में सब्सिडी दी नहीं। अभी भी मैंने, दिस मूवी हैज बीन शॉट इन पेरिस, कांस, दुबई, अबू धाबी, गाम्बिया, डकार, टोगो, LA, बॉम्बे, कर्जत एंड मेनी मोर प्लेसेस। नो सब्सिडी टेकन। नहीं मानते सब्सिडी, कौन बैठ के फॉर्म्स भरेगा, ये भरेगा, ये क्रिएटिव पीपल यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात मैं है। बीबी को ही बोल देता हूँ भाई कुछ पैसा दे पिक्चर बनाने के लिए। उसका नाम डाला मैंने पिक्चर में, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो दिस इज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। माय नेक्स्ट मूवी इज कॉल्ड वी द सिल्कवर्म्स and it will be shot entirely in LA. उसमें सिर्फ हमारी बात चल रही है, एक बुढ़ा स्टार बनता है, 80 साल का बुढ़ा, एंथोनी हॉपकिंस, रिचर्ड गियर, एक बुढ़ा चाहिए। जिस दिन उसने साइन किया, 3-4 महीना हम लोग जाके बैठे थे वहाँ पे, पिक्चर खत्म। उसमें भी सिर्फ 2 ही किरदार है, वो पिक्चर में भी नहीं, इस पिक्चर में तो बहुत किरदार है। मीना में तो 100-150 लोग हैं, बट उस पिक्चर में सिर्फ 2 ही किरदार, एक लोकेशन, पिक्चर फिनिश। फिल्म का नाम आपने क्या बताया? वी द सिल्कवर्म्स। अरे वो जस्ट लाइक वो सिल्कवर्म क्या अंदर के अंदर एक गुड़िया की जो फिल्म बनाई थी ना उन्होंने, पत्रकार महोदय ने, है ना? सिल्कवर्म क्या है, वो अपना गोल गोल धूप से सिल्क बनाता रहता है। ओ। वो जब भी खत्म होता है तो देखता है मैं फंस गया, अंदर मर गया। तो हम भी इंसान अपनी जिंदगी में, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा Cowboys दोस्त, बनाते ये जाते मेरी हैं। पिक्चर, ये मेरे करते 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 पूरी जिंदगी खत्म हो अच्छा गई। कुमार साहब, सर, समय के विषय पर निर्देशक के लिए बहुत चुनौती होती है। वो एक तो आपका वर्ल्ड लेवल पे इतना नाम है फेस्टिवल्स में, तो दूसरा ये विषय तो कलाकारों के लिए, उसका कलाकार चयन के लिए, तो उसकी वर्कशॉप, कलाकार को तैयार कराना, किस तरह की चुनौती आई है? सर जी, वर्कशॉप है ना, ये यशराज बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, हमको इतनी फ्रीडम देते हैं। ये बोला मैंने एक्टिंग कभी की नहीं है,
मैंने कहा भाई तू इस सिचुएशन में आएगा तो तू क्या reaction करेगा करेगा? वही कर, कोई वर्कशॉप नहीं। मेरे पिक्चर में जो होता है आई गिव द फ्रीडम फॉर अरे अनदर अमीना के लिए तो चुनौती होगी। कुमार साहब, मजेदार चुनौती नहीं थी। अलग अलग शेड से एक्टर्स तो ट्रेंड ही होते हैं। जो हाँ। मेरे एक्टर्स हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि थिएटर आर्टिस्ट हो, ये हाँ, थिएटर great आर्टिस्ट actors। इतने इतने experience बंधे हुए बचे हैं। हुए हैं बिल्कुल। अभी आपको बता रहा हूँ, मैंने रेखा राणा को देखा था अमिताभ बच्चन का प्ले करते हुए जहाँ अमीना बिकती है। मैंने कहा प्ले भी रेडी, Heroine भी ready। डायलॉग भी रेडी, अब मेरे को क्या वर्कशॉप देने का है। वो बेचारे वर्कशॉप देके 1 साल कर चुके हैं, तो मेरा काम तो वो कर चुके हैं आधा। करेक्ट। आपने ये इसे कहते हैं प्रोड्यूसर वाला दिमाग है। क्या? जो चीज सजा हुआ है उसको बस मुझे थोड़ा सा और उसमें कुमार साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारी मतलब वुमन ओरिएंटेड फिल्में आई है। अमीना के पब्लिश होने के बाद, रिलीज होने के बाद आप कितना आसान्वित है कि वुमन के प्रति जो वायलेंस में आप तो ये देखते हैं कि कुछ कम होगी, या वो जो पुरुष प्रधान समाज है वो ऐसे ही चलते रहेगा? नहीं सर, एक एक बूंद से ओशन बनता है। माय वर्क इज टू एज अ क्रिएटिव पर्सन कंट्रीब्यूट समथिंग गुड टू द सोसाइटी। हाउ आई एम डूइंग इट टू द सोसाइटी इज, यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ, आप बोलोगे मैं रोता नहीं हूँ, मेरे पिक्चर में आप रोगे, एक बार नहीं कम से कम 4 बार रोगे। आपका दिल में महसूस होएगा कि यार we require some changes. So I am trying to educate, and by education I am trying to change the society, and I alone cannot do, everyone has to do. अभी मैं आपको बोलूँगा, आपको पिक्चर अच्छी लगी तो आप 10 आदमी को बोलो, वर्ड ऑफ माउथ इट शुड गो। पिक्चर अगर चली तो मैं बोलूँगा आपके जैसे अच्छे लोग थे जिन्होंने बोला, because otherwise we still move on, we go to the next movie. I have an answer for you. ये बहुत छोटी सी एक इंस्टेंस है जो मैं समझा सकती हूँ। एज ए लेडीज राइट, जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हम लोग को डिफेंस के लिए टाइकांडो या जूडो या ये सिखाते हैं राइट। आज भी बच्चे स्कूल में दिखाया गया है, तो दूसरे तरीके से नहीं दिखाया जा सकता था इसको, बदला वाला एंगल क्यों है? वायलेंस बिकॉज वो आज भी मीना है। आप जब भी वायलेंस देखो, 2 आदमी है, एक नाटा है एक लंबा है, आप बोलोगे ये लंबा है, ठीक है ना, अभी उससे भी लंबा आ गया तो बोलोगे ये लंबा है, तो अभी वो क्या हुआ, वो लंबा छोटा हुआ। वी हैव टू, व्हेन आई एम शोइंग यू वायलेंस, देन ओनली यू विल गो टुवर्ड्स पीस, देन ओनली यू विल डिसाइड वेदर यू वांट पीस ऑफ। तो इट इज अ वी अभी जब भी मैं यंग था, अभी तो बुढ़ा हो गया, तो लड़की को ये नहीं बोलता था कि भाई मेरे साथ डेट पे चलेगी, मैं बोलता था आज चलेगी या कल चलेगी, लड़की होती थी कल चलेगी। तो you have to give a choice. I'm sorry for giving a very I said it was in my young days, it was not now. So when you have to give a choice to people, when you give a choice, if I give you a sensible choice, you will not take violence, you will take some good, because end is bad. The तो end is इट्स bad. लाइक कि कोई ऑलरेडी आप पे चिल्ला रहा है तो उसको चुप करने के लिए आपको और ऊंचा चिल्लाना पड़ेगा, लाइक दैट। I'm sorry, I was not able to give the correct example. No, you But don't my have movie, you're right. yeah, my Because- movie will give you a good choice, and you will say, ये सब जो रेप है ये गलत है, because in the drama, the girl is acted so beautifully, and Aftab Hasnan has written so beautifully that Anant Mahadevan has acted so well. They are the mind you will cry in the movie. When you cry, what are you going to select? You're going to select something good. ये फेस्टिवल में जा रही है, ये फेस्टिवल्स के लिए नहीं है, इससे पैसा बनाना चाहिए। कई बार मेरे ख्याल से आपने जो ये नैरेटिव सुना है वो इसलिए हो सकता है इसलिए भी चुना हो क्योंकि कभी हम अगर व्यवस्था देखते हैं और बहुत वायलेंस देखते हैं तो हमारा मन जो है जब अशांत हो जाता है तो शांत भी हो जाता है। ये कहने के लिए कि हमें इस तरफ नहीं जाना है या हमें इससे बच के जाना है और हमें दूसरों लोगों को भी इससे बचाना है। तो हो सकता है कि नैरेटिव उसके लिए आपके लिए काम आए। And we wish you very good luck. The writer Aftab Hasnan has written this story for trying to bring in a good change in the society. जी। He's made such a beautiful play, and I have made this beautiful movie. I cannot tell you now, but when you see it, you're going to love it. You're going to love it. So we should all take a pledge here. हम सब अमीना देखने जाएंगे।